algebra carry 10 marks. First is polynomial and linear equation. Today we will start. The topic is linear equation. What is the meaning of linear equation? You have already learned in class 9th, class 8th, class 7th also. There is the two type of the linear equation, one variable and two variable. ठीक है? In the 10th class we have studied two variables. Suppose that question is a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. You have to prove, you have to find the value of x and y from this equation. So there are mainly two methods for finding the x and y. First is graphically. Yes. Two methods for solving equation. First is what? Graphically method and Algebraic. yes, algebraic method. In this class we learn algebraic methods. Algebraic methods mainly three parts. Substitution method, elimination method, Cross multiplication method. cross multiplication. Just I repeat, today topic is algebra. Algebra carry 10 marks. There are the two topic covering in this algebra. First is polynomial, another is linear equation. Linear equation, this is the equation you already learned. There are the two methods of solving the equation, graphical method and algebraic method. This is three equations, three methods you can solve: substitution, elimination, cross multiplication. If you see the board papers, never write you solve by substitution, elimination and cross multiplication. Always write solve the equation. You find the value of x and y. What is the basic method of elimination? Eliminated क्या होता है? Eliminate करना किसी चीज को, हटाना. कैसे हटाते हैं? हम किसी सिस्टम से हटा देंगे, घर से हटा देंगे, इक्वेशन से हटा देंगे. तो ये जो कंसेप्ट है, this is the elimination methods. Find x and y. 2x plus 3y equals to 5. 4x plus y equals to 10. कुछ नहीं करना है आपको, आप ध्यान से समझे. पहले लेट कर लें. 2x plus 3y equals to 5. 4x plus y equals to 10. Let the equation, this is 1 and this is 2. Here it is 4, here it is 2. By any method, you make 2, 4. How it possible? If you multiply equation first by 2, that it becomes 4. Either simple see topic, this is 4, here you write 4, it is 2, here you write 2.
नथिंग, किंतु परंतु कुछ भी नहीं करना है। अपने को जो सेकेंड इक्वेशन में है उसको फर्स्ट में लिख के दीजिए, जो फर्स्ट में है उसको सेकेंड में लिख दीजिए। चलते हैं, 4 को 2 से इंटू कर दीजिए 8x, 4 को 3 से इंटू कर दीजिए 12y, 4 को 5 से कर दीजिए 20, 2 को 4 से कर दीजिए 8x, 2 को y से कर दीजिए 2y और 10 को 2 से कर दीजिए 20। नाउ साइन चेंज करना है। इसका साइन क्यों चेंज करना है? क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हो गया, लेकिन इन दोनों का प्लस ही साइन है, प्लस में कभी नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 10y हो जाएगा। 20 में से 20 जाएगा तो इक्वल्स टू 0/10, दैट इज वैल्यू इज 0। इट इज क्लियर? नाउ put the value of y in first equation। आपको होगा सर क्या फर्स्ट ही क्यों? You can put any equations, either you can put 1, either you can put 2। So you can put first, so 2x plus 3y is equals to 5। 2x plus 3 into y की जगह 0 पुट कर दीजिएगा, यहाँ 5। 2x plus 0 is equals to 5, तो 2x equals to 5, x equals to 5/2। It is clear? But अपना मिशन यहाँ भी नहीं खत्म हुआ। आपको चेक करना है कि आपने जो आंसर निकाला है इट इज करेक्ट और नॉट। हाउ कैन इट चेक? आपका मार्क्स यहीं तक मिलेगा, लेकिन चेक करना है। कैसे चेक करेंगे वो देखेंगे। 2x plus 3y is equals to 5 बच्चों। x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? 5/2। वेरी गुड, 5/2। y की जगह क्या पुट करेंगे? 0। ये 2 से 2 कट जाएगा। 5 plus 0 is 5, 5 equals to 5। This is the basic method of the elimination method। एक सेकेंड थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। इसका एक और भी मेथड्स है कि 2x plus 3y equals to 5, 4x plus y equals to 10। कुछ भी नहीं करना आपको। This is what? This is 3y and here it is y। So just you multiply 3। 10x plus 3y is equals to 5, 12x plus 3y is equals to 15, minus minus, this is cancel out। यहाँ देखिए सही है, this is minus and this is plus, minus plus minus, so this is minus 10x and here it is minus 10। तो ये 30 होगा, 15, तो 10 is a 30। This is 30, Yes sir। so this one is minus 25। Yes। क्या करेंगे बच्चों? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x equals to 25/10। This is what? This is 5। Yes sir। Clear? I think this is the basic methods for solving the value of x and y। Now the next question, how can you solve? Solve for x and y। y को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। 3x/2 minus 5y/3 equals to minus 2, x/3 y/2 equals to 13/6। Nothing worry about it कि how can solve the questions या ये वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखें सबसे पहले इसके लिए बेसिक क्या है, थोड़ा सा वो देखें। a into
b अपॉन c मीन्स व्हाट, इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे अपन, 1 लिख देंगे, तो क्या होगा ab अपॉन c। सेम चीज 1 अपॉन 4 और 3 अपॉन 6 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 आएगा LCM। यस, तो 2 2 टू द 4 और ये 3 टू द 6 6 into 2 that is 12। नाउ सॉल्व कैसे करेंगे 12 को, तो 4 3 जा 12, तो 1 into 3 प्लस 6 into 12 2 that is 2 upon 12, तो 3 plus 12 upon 12 15 upon 12। क्लियर? Yes, sir. Again I repeat, so same concept here in this topic. How can solve, right? देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम डायरेक्ट कर ले, क्या बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने की जरूरत है। मैथ्स में जितनी बार आप क्वेश्चंस लिखेंगे नया नया टॉपिक आपके दिमाग में आएगा, नई नई चीजें इंप्लीमेंटेशन होगा। अब आप देखें, सी हियर, हियर इज व्हाट 3x एंड हियर इज व्हाट ओनली x। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, देखिए यहाँ पे क्या है 3/2 है और यहाँ पे सिर्फ x/3 है। तो आप इन दोनों का पहले एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा 3 और 3 का 6। इस 2 से इस 6 को डिवाइड करना है, तो 3 और इस 3 को इस 3 से इंटू करना है, प्लस इस 3 को इस 6 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा 2, तो 5y into 2 इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 3 3 जा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा इक्वेशन। अगेन आई रिपीट, वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट इक्वेशन। हमने इन दोनों का क्या किया, एलसीएम लिया। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया। हमने 2 को 6 से डिवाइड दिया तो 3 आ गया। इस 3 को हम इससे इंटू करेंगे तो ये हो गया 9x। हमने इस 3 को 6 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। 2 को 5 से किया तो हमारा 10 आ गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और इसको थोड़ा सा आप करें तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट, नथिंग 2x। यस, LCM of 3 and 2 6, 3 into 6 that is 2, 2x so that is 2x plus 2 into 6 3y is equals to 13 upon 6। इसमें कंसेप्ट याद रखेंगे, a अपॉन b और c अपॉन b। अगर इन दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन है और दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, इट बिकम्स कट आउट। आप ध्यान से समय बच्चों, इसको आपको जो मैं लिखता हूं यहाँ पे इसको लिखना है ताकि जब रिवीजन करो, फेयर आउट करो तो तुम्हारे पास होना चाहिए कि सर ने क्या बताया था। नाउ ये बिकम्स कैंसिल आउट, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। Now the same concept here, जो already we discussed. Now solving first and second. Solving first and second is what? 9x minus 10y is equals to minus 12, and this is 2x plus 3y equals to 13. Now same cheese here. This is first, this is second. This equation multiplied by 9 and this equation multiplied by 2. So this is multiplied by 2 and this is multiplied by 9.
तो 2 से इस पूरे को इंटू कर दीजिएगा तो मिलेगा आपको 18x माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको इंटू कर दीजिएगा 18x 27y इज इक्वल टू 117 माइनस माइनस माइनस। नाउ दिस बिकम्स cancel out 27 or this becomes 47y and this is minus and here is also minus. So what is 7 or 4 11, 2 or 1, 3 or 1, 4 or 1. Minus minus cancel. So y equals to 141 upon 47. I think this becomes 3. Now put the value in first equation here. This 9x minus 10y is equals to minus 12. तो 9x minus 10 into y की जगह 3 minus 12. तो 9x is equals to minus 12 plus 30. तो 9x equals to 18, x equals to 2. yes Same concept you apply and check. Answer is correct. I repeat the same questions. Solve the value of x and y. मतलब क्या आपने समझा? अगर किसी के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है और वो इक्वल है तो वो कट आउट हो जाएगी, कट आउट हो जाएगी। और अगर किसी के डिनोमिनेटर में डिफरेंट चीज है तो यू टेक द एलसीएम फर्स्ट। एंड एलसीएम आपको पता है, तो हमने इस एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद हमने ये किया, elimination. NCERT 3.6. Many questions of 3.6 come in exam. जो क्वेश्चंस पहले एग्जाम में आ रखे हैं मैं उस क्वेश्चंस को बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 2000 ये बटे ना ये वाला 2019 में ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है 4 upon x plus 3y equals to 14. 3 upon x minus 4y equals to 23. Same change, nothing different in these questions. जैसा मैंने बताया आपको, फर्स्ट यू लेट दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। हियर इज 3, हियर इज 4, so this is multiplied by 4 and this is multiplied by 3. सर 3 तो ऊपर वाली होगी ना, सबसे फ्रंट वाली पुट करते हैं। It's not necessary to put the value of x. You can put value of y also. It's 4 is multiplied by 4. देखिए कंसेप्ट क्या है इसमें थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। बेसिक 4 upon x multiplied by 4 many times this is this one, this is x, but 4 upon 4x कभी नहीं करेंगे इसको। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 by x, 12y equals to 56, 3 से करेंगे तो 9x minus 12y equals to, this is minus, this is plus, this is minus. But matter is that this is already different sign, so no need to change the sign, so this becomes cancel out. 16 upon x plus 9 upon x
56 plus 69. Take the LCM. This is x. 16 plus 9. 125. This is 25 upon x is equals to 125. 125 upon 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दिस इज 25 इंटू 1 और 125 इंटू एक्स. वही चीज जो मैंने बोला आपको 25 अपॉन 125 कैंसिल. दिस इज 1 अपॉन 5. एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 5. Yes, sir. Same. Put the value of x in any equation. Put the value of x in first equation. 4 upon x plus 3y is equals to 14. 4 upon x is what? 1 upon 5 plus 3y equals to 14. 5 ऊपर चला जाएगा तो दिस इज 20 प्लस 3 अपॉन y इक्वल्स टू 14. 3y इक्वल्स टू 14 माइनस 20 तो 3y इक्वल्स टू माइनस 6. y इक्वल्स टू माइनस 2. देखिए आप चेक करें, हमेशा ध्यान समझे, इसमें बेसिक क्या है थोड़ा सा. अब इसको चेक कर लें कैसे. 4 अपॉन x 3 अपॉन y इक्वल्स टू 14. x की जगह वैल्यू पुट कर दे बच्चों. 1 अपॉन 5 माइनस 2, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 20 माइनस 6 इक्वल्स टू 14. तो दिस इज 14 इक्वल्स टू. चेक बहुत ही जरूरी है. अगर आप चेक नहीं करेंगे तो योर आंसर क्या सही है क्या गलत है वो अपने को पता नहीं चल पाएगा. तो चेक करना तो बहुत ही मैंडेटरी है. आपको चेक करना ही पड़ेगा. विदाउट चेक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे कि हमने करा है तो सही है या गलत. 3 चीजें जो है इसमें मैं बताना चाहूंगा जो बच्चे ज्यादा गलत करते हैं. एक तो इस स्टेप पे ज्यादा गलत करते हैं. स्लाइटली ध्यान से रखिएगा. 25x equals to 5. Its answer is 5 upon 25. Yes, sir. But Yes, sir. if I am writing 5 upon 5x, so x is what? 25 upon 5, that is 5. This is the major difference in these two cases. Yes, sir. x जिसके पास पैसा रहता है वो हमेशा नीचे रहने की कोशिश कीजिए. दबा हुआ रहता है, सॉफ्ट रहता है. बट x देखिए आप इसके पास नीचे है. आप इसको हमेशा ऐसे देखिए. जिसके पास वेरिएबल्स होंगे, x होगा, y होगा, z होगा, they always came in. Give me what I'm looking for. Yeah.